رات علی جناب نے اپنے اوپر نیند حرام کر لی. کیسے نیند آئے؟ میرے بھائی زندانوں میں جو ہیں. گیلس، میرا گھوڑا تیار کرو، غار جانا چاہتا ہوں. لباس اور تلوار بھی؟ ہاں. اطاعت علی جناب. تھوڑا سا آزاد سفر بھی. پھر عبادت کے لیے وہی ویرانی جگہ؟ کیا ہمیں اپنی عبادت گاہ نہیں بتاؤ گے؟ کیا فرق پڑتا ہے، یہی نزدیک میں ہے. شہنشاہ کی آمد سے پہلے خدا کی بارگاہ سے کوئی راہ حل تلاش کرنی ہوگی. اگر دقیانوس نے آپ کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دوں؟ کہہ دینا کہ رعیت کی دیکھ بھال کے لیے شہر سے باہر دورے پہ گئے ہوئے. یہ لیجیے. شکریہ گیلس. بیٹا، میری غیر حاضری میں اپنی ماں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. خدا حافظ غالب. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا علی جناب. اس خطرناک صورت میں کیا ان کا جانا ضروری تھا؟ نہیں معلوم. آؤ جی آؤ، سستے داموں میں لے جاؤ. بھائی کتنے دام میں دے رہے ہیں؟ بھائی پہلے پسند تو کر لو. لے لو بھائی، لے لو، سستے داموں میں اچھی چیز. بھائی کتنے دام میں بیچ رہے ہیں؟ پہلے پسند. میں یہ لے رہا ہوں. کیا قیمت ہے اس کی؟ وہ دیکھو دیکھو بندر لے جا رہا ہے. ہاں وہ تماشا لگا ہے. اچھے ہیں، دیکھ کے. ایسے اور بھی ہے تیرے پاس؟ ہاں ہاں دیکھو تو صحیح ہے. اچھا مال ہے. ہاں میں یہ برتن کتنے کا ہے یار بتاؤ تو صحیح ہے. آپ پہلے پسند کر لیجیے، دام بتا دیجیے. مناسب بتاؤ کتنے کی آپ سے پسند تو کریں آپ. یہ کتنے کا ہے نظر آ رہا ہے اس کا؟ مجھے یقین ہے کہ یہ یہودی جولیس کے لیے جاسوسی کرتا ہے. میکسیملین کا پیچھا کر رہا ہے.
خدایا ہر موڑ پر تو نے ہماری مدد کی ہے. دنیا کے ہر فراز و نشیب میں تیرے عنایات نے ہمیں سہارا دیا ہے. مذاہب کے ہجوم میں، راہوں کی بھیڑ میں تو نے اپنا راستہ دکھایا ہے. آج بھی ہم تیرے سہارے کے، تیری ہدایت کے محتاج ہیں. خدایا ظلم و ستم کے اس دور میں ہم کیا کریں؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ کیا خاموش رہیں یا کچھ کریں؟ تو کیا کریں؟ اے ظلمتوں میں شمع ہدایت جلانے والے، عیسی ابن مریم کا واسطہ، جس راہ میں تیری مرضی ہو اپنے الطاف سے ہمیں الہام فرما دے. اے وہ جس کے الطاف و عنایات منہ زور آندھیوں میں بھی شمع امید کو حوصلہ دیتے ہیں. تیرا وعدہ ہے کہ ایک دن تیرا دین عام ہوگا، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، عدل و داد کا بول بالا ہوگا، نئے صبح و شام ہوں گے، نیا اہتمام ہوگا، آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے ابل دے گی. خدایا وہ سہانے دن ہمیں بھی دکھا. کیسے ظالم حکومت کے جاؤ حشم کا غرور خاک میں ملے گا، کیسے ان کی طاقت کا شوکت کا دم ٹوٹے گا. خدایا کیسے؟ کب شرک و الحاد کی ظلمتیں چھٹیں گی، کب توحید کا اجالا ہوگا. عیسی ابن مریم کا واسطہ ہمیں بھی دکھا. آہستہ آہستہ، سنبھال کے اتارو، سنبھال کے. اب ہم لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا ہے. فی الحال صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اس پہاڑ کو وہاں رکھ دو. جی حضور. ایک عظیم کام کو انجام دینے کے لیے عظیم فکر و ارادے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھو جولیس کا جاسوس آ گیا. دیناسس، اس کی خبر تو لوگ کہاں سے آیا ہے؟ ہے تم سے کہہ رہا ہوں، رک جاؤ رک جاؤ. حضور مجھے آواز دے رہے ہیں. ہاں تمہیں. حضور میں کام سے جا رہا ہوں. تو تم چاہتے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی کرو؟ کیوں؟ میں نے آپ کی آواز نہیں سنی. میں نے دیکھا کہ تم میکسیملین کا پیچھا کر رہے تھے. نہیں جناب، میں ضروری کام کے لیے شہر سے باہر گیا تھا. انکار کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ہم بھی میکسیملین کی غداری ثابت کرنے کی فکر میں.
यकीनन तुम भी इसी काम के लिए बाहर गए थे। अरे हुजूर, मैं तो जनाबे जूलियस की तरफ से मामूर हूँ कि उसका पीछा करूँ। तुम एक जगह से इनाम लेने के बजाय 2 जगह से इनाम ले सकते हो। क्या हर्ज? हर्ज तो कोई नहीं हुजूर, बताता हूँ हुजूर, जरूर बताऊंगा हुजूर। उसका पीछा अंजलस के पहाड़ तक किया। एंजलस? जी हुजूर, फिलाडेल्फिया के नजदीक एक पहाड़ है, वो एक खार के अंदर गया। हुजूर, मैंने इन कानों से सुना, वो ईसा मसीह की बात कर रहा था, दुआ पढ़ रहा था। और क्या बता सकता हूँ हुजूर? आहिस्ता बोलो, क्या कह रहा था? खुदाबंद एकता के बारे में। आहिस्ता बोलो। मसीही हर जगह है, अगर उसे खबर मिल जाए तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी और परिंदा भी पिंजरे से उड़ जाएगा। अच्छा हुजूर, अब बताएं आप क्या करना चाहिए? आहिस्ता आहिस्ता बोलो तुम। मुझे यकीन है कि उसके पास बहुत सारी खबरें हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यानी जनाब मैक्समिलियन भाग जाएंगे? वो खबरें जो हमारे पास है, मालूम है कि उसके पास रहने की कोई जगह नहीं। तो क्या आपके पास भी खबरें हैं? वो जो मैं जानता हूँ उसका एक हिस्सा भी तुमको और तुम्हारे मालिक जूलियस को मालूम नहीं। अलबत्ता मैं मैक्सिमिलियन से झगड़ने की हिम्मत नहीं रखता। तुम जानते हो कि वो तकियानूस का दामाद और उसका खुसूसी मुशीर है और रोम में उसका मजबूत मुकाम। वो शख्स जो उससे टकरा सकता है वो जनाब जूलियस है, जो उसके बराबर है। तो हुजूर, आप ये सारी खबरें जूलियस को क्यों नहीं देते? उस पर आपको रहम नहीं करना चाहिए। फिर आप कल मुझसे नहीं कहोगे कि आइए और गवाही दीजिए? नहीं, आकिल इंसान अपने लिए मुश्किल खड़ी नहीं करता। अच्छा, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तमाम खबरें जनाब जूलियस तक पहुंचा दूंगा। हाँ, मगर एक शर्त पर। नहीं बताओगे कि किससे सुना है? मैं आपसे वादा करता हूँ वाली जनाब, वादा। बहुत खूब। यहाँ बात नहीं हो सकती। अपने घोड़े पर बैठो और मेरे पीछे आओ। सिपाही घोड़ा लाओ। सोचते क्या हो, घोड़े पर सवार क्यों नहीं होते? उतर जाओ। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो।
किस लिए है अली जनाब? शमशीर जरिया है खबर रसानों और जासूसों की गर्दन उड़ाने का। आपका मतलब मैं तो नहीं हूँ? क्या यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा भी कोई और है? अली जनाब, मैं तो रोमियो और हुकूमत दकियानूस का खादिम हूँ। तुम मसीही खुदा परस्तों के दुश्मन और अपने मफादात के खादिम। मैंने देखा है कि तुमने जूलियस से किस तरह शर्फियों की थैली ली है। तलवार उठाओ और अपना दिफा करो। लेकिन मैंने अब तक जनाब जूलियस के अहकाम पर अमल किया है। ठीक है, तो आप जनाब जूलियस से कहो कि आकर तुम्हें बचाएं। नहीं जनाब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की है। मैं भी आपकी तरह खुदा परस्त हूँ, मुझ पर रहम कीजिए मेरे बुजुर्ग। अजब तो यही है, एक यहूदी खुदा परस्त मसीही खुदा परस्त की मदद करने के बजाय रूमी बुत परस्तों की खुशामद में काम करता है। उठ और अपना दिफा कर, उठ जा। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने सारी उम्र रूमियों की खिदमत की है, मुझे बख्श दीजिए हुजूर। आप अपने खादिमों को इस तरीके से न मारे हुजूर, मुझे बख्श दीजिए। उठ, वरना मजबूर हो जाऊंगा कि बगैर हथियार के तुझे जहन्नुम रसीद कर दूं। नहीं 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 नहीं, आप मेरे ऊपर रहम करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब मैं अपने मोहसिन पर तलवार नहीं उठा सकता, मुझसे गलती हो गई, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं मजबूर आदमी हूँ, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाने दीजिए। खुदा जाने अब तक कितने खुदा परस्त तेरे हाथों रूमी बुत परस्तों के कब्जे में गए। चलो चलो, आओ, किधर जा रहे हो? आओ 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 आओ। चलो भेड़ो, चलो 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 चलो। किधर गया ये? हाँ, अरे किधर जा रहा है? रुक जा भाई। किधर जा रहा है? अरे हमको कहाँ तक ले जाएगा अपने पीछे पीछे? रुक जा। रुक जा, अरे रुक जा। पकड़ लिया, अरे फिर से निकल गया, थका दिया। भाग देखता हूँ कितना भागेगा। बहुत थका दिया, अबे रुक जा। ये तो उसी का घोड़ा है।
वो फिर से आया है। इसकी बातें तो सुनने लायक है। देखो खुदा से क्या कह रहा है। वालिलाहा, सारी जिंदगी तुझे भुला के बसर किया हमने, फिर भी तेरी रहमत का साया हमारे सरों पे कायम रहा। हमें हर नेमतों से नवाजा, ऐसी नेमतें जिन्हें हम जानते भी न थे, पहचानते भी न थे। तो ख्वाहिश क्या करते, तमन्ना क्या करते। खुदाया तूने हर ख्वाहिश से पहले हर तमन्ना से फजूतर नवाजा है। पालने वाले, ये दुनिया की तमाम नेमतें, ये ज़मीन व आसमां, ये पहाड़, ये दरियाए बेकरां, ये शम्स व कमर, शाम व सहर, शाख व शजर, बर व समर, ये आब व हवा, अब्र, घटा, फजा, मौज सबा। खुदाया ये तमाम नेमतें एक तरफ और नेमत हिदायत एक तरफ। ऐ ज़ुल्मतों के घंघोर अंधेरों में शम्मे हिदायत जलाने वाले, हम तेरा शुक्र अदा करें तो कैसे। ऐ जानवरों को भी रिज़्क़ मुदाम अता करने वाले, तेरी अनगिनत नेमतों का शुक्र कैसे अदा करें। निकलो इधर से, चल भाग, जल्दी भाग, चल। रुक, मेरे साथ चल। फिर वही चरवाहा अभी भी मुझसे डरता है। चल मेरे साथ आ जा। हाँ, चल। जल्दी से इसे खत्म करो। तुम आ गए, क्या हुआ उसका? हाँ, तो फिर क्या हुआ? वो बहुत कुछ जानता था जो उसे नहीं जानना चाहिए था। के दो जहां, खालिक ज़मीन व आसमां, हम तेरे बंदे आजिज़ व नातवां, कारोबार दुनिया से हैरान व परेशान तेरी बारगाह में फरियाद लेके आए हैं। ऐ वो जो हमारी रगे जान से भी ज्यादा हमसे करीब है, हर चीज तेरे लिए वाज़े हो अयां। ये मजलूमों के बदन पर जुल्म सितम के ताजियाने, ये सलीब पे चढ़ते हुए आग में जलते हुए परवाने, तेरे वजूद के परवाने। ये जबर तशद्दुद के जिंदानों में बेगुनाहों की घुटती हुई फरियादें, खुदाया तू सुन रहा है, देख रहा है। कितने सुहाग उजड़ गए, कितनी गोद वीरान हो गई, खुदाया तू आगाह है। इलाही, ये यतीम बच्चों की मासूम आंखों में डबडबाते हुए आंसू तुझे पुकार रहे हैं। हुए आंसू तुझे पुकार रहे हैं।
मेरे भाई। तुम कौन हो? आपका बरादर ईमानी, आपका हम मजहब। मेरे मजहब का इल्म तुम्हें कैसे हुआ? आपकी मुनाजात से। कितनी अच्छी मुनाजात करते हैं आप, मैंने कई बार सुना है। वलियों की तरह। ये दूध आपके लिए लाया हूं, ले लीजिए, भेड़ का है। शुक्रिया आपका। क्या आप एक मुबल्लिग हैं? लेकिन नहीं, आपका लिबास तो शरीफों और दरबारियों की तरह है। आप तो शहरी मालूम होते हैं, नहीं मालूम किस शहर के। इस जगह को कैसे पाया अली जनाब? क्या फर्क पड़ता है, हम सब भाई भाई हैं। तुम्हारा नाम क्या है? एंथोनी, चरवाहा एंथोनी। अजीब बात है, एक रूमी और चरवाहा। मेरे बाप दादा किसान थे। इडली के खेतों में भेड़ के बच्चों की भारी तादाद की वजह से किसानों की हालत खराब हो गई थी। मेरे बाप दादा भी मजबूर हुए कि यहाँ हिजरत कर जाएं। यहाँ भी भारी मालियात ने पीछा नहीं छोड़ा। एक बीघे जमीन जो हमारे पास है, मुश्किल से हमारी सालाना ग़िज़ा हासिल होती है। फिर भी खुदा का शुक्र है कि मैं लोगों की भेड़ें चराकर अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। अरे आपका नाम तो पूछा ही नहीं। मैक्सिमिलियन। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, ऐसा लगता है ये नाम मैंने कहीं सुना है। हाँ, शहर में। तुम अक्सर शहर जाते हो? नहीं, कभी कभार। तुम मसीही कैसे बने? पहले से था, मेरे माँ बाप भी मसीही थे। ट्राजन के जमाने से। अलबत्ता मसीहियों को सजाएं देने के सिलसिले में ट्राजन के मशहूर फरमान से पहले ही वो लोग मसीही हो चुके थे। मैक्सिमिलियन, मैक्सिमिलियन, मैंने कहा नहीं था मैंने ये नाम पहले कहीं सुना है। मेरे ख्याल में ये दकियानूस के एक मुशीर का नाम है, वो भी एक अहम मुशीर। हाँ, लेकिन इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? नहीं 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 यार, नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। दकियानूस का मुशीर, एक दरबारी शरीफ ज़ादा, ईसाइयों का दुश्मन। वो भी यहाँ। एक लम्हे के लिए तो मैं भी खुश हो गया था कि मसीहियत दकियानूस के दरबार में और शहर के शरफा तक पहुंच गई है। क्या ये खबर लोगों की खुशी का बाइस बनेगी? खुशी से भी बढ़कर लोगों की कुव्वत कल्ब और ईसाई मजहब की रौनक का बाइस बनती है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं कि आप वो मैक्सिमिलियन हो। लेकिन खैर, आपका लिबास तो शरफा की तरह है। बहरहाल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ठहर जाओ।
अरे ये तो अजरफील यहूदी है। कैसे पता चला कि अजरकील को कत्ल किया है? उसकी लाश शहर के करीब ही जंगल में मिली है। उसकी आखिरी मामूलियत मैक्सिमिलियन का ताक़ुब था, फिर उस दिन के बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। यकीनन ये मैक्सिमिलियन का काम हो सकता है। नहीं मैथ्यूज, नहीं, मुझे शक है। अगर ये उसका काम होता तो 4 दिन शहर नहीं छोड़ता। उसको मालूम था कि उस पर ज्यादा शक करेंगे। अब किसी और को भी तलाश करना चाहिए। अजरकील कर सकता था कि मैक्सिमिलियन के चेहरे को बेनकाब करता। यकीनन उसको सबूत मिले थे। अब इसके बाद तुम मैक्सिमिलियन का पीछा करो। हतमन पीछा करूंगा। मेरा ख्याल है कि बानो हेलन भी उनसे मिली हुई है। नहीं, मैं नहीं चाहता बानो हिलन का कोई जिक्र आए, समझे? में शिरकत हमारे दीन की तक़वियत का सबब होगी। मैं कोशिश करूंगी जलसों में शरीक रहूं, लेकिन तौफीक कम हासिल होती है। हाँ गैलिस, बहुत होशियार बनते हो। बच गए गिरफ्तार होते होते। तुम खुशकिस्मत हो कि मैं पहुंच गया। मेहरबानी का शुक्रिया अली जनाब। अगर आप गैलिस की मदद को नहीं पहुंचते तो उसका क्या हश्र होता? बात वाज़ेह है, जिंदान और शिकंजा। बहरहाल इस वक्त वो यहाँ ना होता, शायद सूली पे चढ़ चुका होता। कोई राह हल सोचिए। मसीहियों के गुरूहों को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। ऐसे हालात में जनाब मैक्सिमिलियन को शहर नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम्हारे मालिक कब वापस आएंगे गैलिस? हुजूर, जब वो गार जाते हैं उनकी वापसी का वक्त मालूम नहीं। गार? जी हाँ। वो खुद कहते हैं कि गार में जाता हूँ। कैसा गार और कहाँ ये कोई नहीं जानता। जाहिरन उन्हें पसंद भी नहीं है कि किसी को उस जगह का पता चले। अदुनिया शहर के बाहर कब्रिस्तान के तहखानों में एक इज्तिमा से खिताब करने वाले हैं। क्या जनाब मैक्सिमिलियन की अदम मौजूदगी में आप शिरकत करेंगी? मैं कोशिश करूंगी। आपका क्या ख्याल है? मैं नहीं आ सकता, इसलिए कि महल में एक आदमी का रहना जरूरी है। जब तक कि जनाब मैक्सिमिलियन न आ जाएं, कुछ तो करना चाहिए। मैं कल अदुनिया के पास जाऊंगा और उनसे मशवरा करूंगा। शायद हम मिलकर किसी नतीजे तक पहुंच सकें। मैं भी आपके साथ आऊंगी। ठीक नहीं है। खतरे की सूरत में तुम्हारी हमराही हम सबको बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार कर सकती है। तो मैं बानो हेलन के साथ आऊंगी। मैंने अभी तक जाने का फैसला नहीं किया। मैं देखती हूँ कल क्या होता है। मुझे माफ करना इतने नहीं मालूम क्यों तुम्हें हेलन से इस कदर गुस्सा है। काफी है कि तुम उस पर थोड़ी मेहरबानी करो और नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी। काश तुम ऐसी बातें करने के बजाय हेलन के अमाल पर भी कुछ तवज्जो देते। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलती पर हो और ये नहीं जानती कि मैक्सिमिलियन की फिलाडेल्फिया में मौजूदगी हमारी हुकूमत को किस कदर इस्तेहकाम अता कर सकती है, जबकि खुद तुमको यकीन नहीं है कि वो एक मसीही होगा। सिर्फ तुम्हारे जरिए मुझसे दरख्वास्त की है कि मैं अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए मसीहियों के कत्लेआम से परहेज करूं। इसकी वजह उसे मुआहिद नहीं कहा जा सकता। मुंह खोल, नहीं बताऊंगा। मुंह खोल और बता एडोनिया कहाँ है? बता उसे कहाँ देखा था? बताऊंगा। बता, मुझे मत बता जलाओ। उसे एडोनिया कहाँ है? क्या मैं ये मुकद्दस बता, मेरी मदद कर। वरना तुझे जिंदा जला दूंगा। नहीं बता, तो मुझे मत जलाओ। वरना यूं ही लटका रहेगा। नहीं बताऊंगा। बता एडोनिया नहीं कहाँ है? बताऊंगा। मुंह खोल, नहीं बताऊंगा। बता मुझे जलाओ। एडोनिया नहीं कहाँ है? नहीं बोला और बेहोश हो गया। मरियम मुक़द्दस।
बता कर अपने आप को छुटकारा पा लेता। कुछ बोला? वो बेहोश हो गया। खोल दो इसे। दूसरा बार। हाथ चल तो चल तो चल चल। तुम इन्हें कुछ नहीं बताना, डरना नहीं, हिम्मत से काम लो। चल हैवान चल, तुम तो अच्छा भुनेगा। मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आग को तेज कर दो। तुम इन्हें कुछ मत बताना, ईसा मसीह हम सबके मददगार हैं। बोल, बताता क्यों नहीं? एडोनिया कहाँ है? मैं अभी बताता हूँ, बताता हूँ। ये वो ज़माना था जब खुदा के मानने वाले जो हुकूमत रूम की जानिब से सख्त दबाव में थे, अपने दीन की तबलीग और मजहबी नशिस्तों को बर्पा करने के लिए मजबूर थे कि या तो वीरान मकानों में जमा हों या पोशीदा तौर पर अपनी जान पर खेलते हुए शहर के बाहर पुराने कब्रिस्तानों में अपने मुबल्लिगीन से इलाही पैगाम सुन सकें। हज़रत मसीह आपको अपनी पनाह में, कोई आए तो नहीं? मसीह ने फरमाया, वो हकीकत जिसे आज तुम अंधेरे में भी कहने से डरते हो, एक दिन दिन के उजालों में कही जाएगी। और वो ईमान जो तुमने घर की खलवतों में हासिल किया है, एक दिन सरेआम निदा दी जाएगी। मौलिम, क्या सचमुच ऐसा होगा? वादे खुदा हक है। बेशक हमेशा जीत सच ही की होती है। आज आप लोग कम हैं, एक कलील सी तादाद जो मजबूरी की बिना पर इस तारीक कब्रिस्तान में जमा हुए हैं। लेकिन मायूस ना हो, एक दिन सारी जमीन पर फैल जाओगे। आज तुम्हें गिरफ्तार करके दरिंदे जानवरों के सामने डाल दिया जाता है, ताकि सितमगर बादशाह और दकियानू से खूंखार तुम्हें तड़पता बिलकता देखकर मस्ती से कहकहे लगाएं और तुम्हारी तकलीफ पर खुशी मनाएं और तुम्हारे आंसुओं से अपने जाम छलकाएं, इस बात से गाफिल कि खुदा तुम्हारा मुहाफिज है और खुदा की नुसरत पहुंचने पर तुम बादशाहों पर हुकूमत करोगे। यह खुदा का वादा है कि गलबा तुम महरूमों का होगा। तुम खुदा की मदद से शहनशाहों को उनके तख्त और ताज से उतार दोगे। आमीन। खुदा की मदद को किसने देखा? कब पहुंचेगी और कब तक मुजाहिमत की जा सकती है? जब सबको हलाक कर दें, जला दें, टुकड़े टुकड़े कर दें और सूली पर चढ़ा दें। ये बंदों का काम है कि दिल में शम्मे ईमान जलाए रखें, और ये खुदा का काम है कि अगर मसलहत जाने तो अपने वादे पर अमल करें। हो सकता है कि ये वादा इलाही हमारी जिंदगी में पूरा ना हो।
गैलिस जी मालकन, आपने कुछ कहा? गैलिस, ध्यान रखो कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जा ना हो। ए मुअल्लिम, क्या हम सब के सब बहश में यकसा होंगे? अगर यकसा हैं तो ये अदालत से खारिज है, वरना जो छोटा है वो अपने बड़े पर रश्क करेगा। यही सवाल हजरत ईसा से हुआ तो उन्होंने फरमाया, क्या कहते हो उस शख्स के बारे में कि जिसके छोटे और बड़े बच्चे हों और हर एक को उसका मुनासिब लिबास पहनाए? तो क्या कोई छोटा अपने बड़े भाई से बड़े लिबास के लिए हिफाजत करता है? और अगर बच्चों को बड़ों का लिबास पहना भी दें तो नाराज होकर कहेगा मुझे अपना लिबास चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह से जन्नत में भी हर एक को हस्ब मरातिब मकाम मिलेगा और हर कोई राजी होगा। ऐ मुअल्लिम, खुदा को कैसे पुकारें कि हमारी दुआएं कबूल हों? खुदावंद आलम हमारे आका मसीह से कहता है, ऐ ईसा, सितमगरों से कह दो कि मुझे ना पुकारें, ऐसी हालत में कि माले हराम अपनी पगलों में दबाए हुए हों और घरों में बुत रखे हुए हों, क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है कि जो मुझसे मांगेगा मैं कबूल करूंगा। लेकिन बुत परस्त, फासिक और फाजिर, माले हराम खाने वालों के लिए मेरी इजाबत लानत के सिवा कुछ नहीं। ऐ नेकियों के मुअल्लिम, हम कैसे जाने कि हम ईमान रखते हैं? अपने बातिन में झांक के देखो, हर कोई अपने बातिन से आगाह है। ईमान खूबियों का एक ऐसा दरख्त है जो अपने फलों से पहचाना जाता है। तुम अपने वजूद के फलों को परख के देखो, कभी भी फासिद दरख्त खूबियों के फल नहीं देता। अगर आपके दरख्त वजूद में सदाकत, अमानत, इफ़्फ़त, मोहब्बत, शुजाअत और सबसे बालातर इश्क खुदा जैसे मीठे फल लगे हों तो समझ लो ईमान रखते हो। एक आदमी आ रहा है। ईसा मसीह पर दुरूद और सलाम हो। सलामत रहे मसीह के चाहने वाले। जनाब अडोनिया मौजूद हैं? जी, मुझे उनसे मिलना है। हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ये दुनिया एक पुल के मानंद है। हमारे आका ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ये दुनिया एक पुल के मानंद है जो तुम्हें आखिरत तक पहुंचाता है। बस गुजर जाओ और उससे दिल न लगाओ। दुनिया की दौलत तुम्हारी आंखों को फरेब न दे और उसकी आंधियां तुम्हारे शम्मे ईमान को बुझा न सके। बहरहाल ये दुनिया गुजर जाएगी और जो चीज हमेशा तुम्हारे साथ होगी तुम्हारे अमाल हैं। होशियार, होशियार,
کہ روز قیامت تمہارے ساتھ گناہوں کے انبار نہ ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ خدا مردوں کو دوسری دنیا میں پھر سے زندہ کرے گا؟ بوسیدہ ہڈیاں کس طرح زندہ ہوگی؟ آخر یہ کس طرح؟ جس طرح سے کہ پہلے تم اس دنیا میں نہ تھے اور تم کو حیات بخشی۔ کیا تم نے خزاں کے بعد موسم بہار میں دوبارہ شگوفوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، ایمان زبان سے نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بات کرنے یا ظاہری شکل سے تم ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ان کے دل دولت ایمان سے مالا مال ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ تم لوگ کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ خاموش، رک جاؤ۔ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ جانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ کہاں جا رہے تھے؟ عیسائیوں کے اجتماع میں شرکت کرنے کو؟ گرفتار کر لو انہیں۔ کیا